Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. In last class we have studied about Gomori's constraint, and today we are going to study about branch and bound technique. Branch and bounding technique is also a technique to get an integer valued answer. So in this technique is applicable to both all integer programming problem as well as mixed integer programming problem. uh, as I have discussed about these two types of integer programming problem in last class, so please go through the last video to understand the basic difference between mixed and all integer programming problem. The systematic step-by-step solution of an IPP by branch and bound technique is as follow. First is step 1 is solve the given IPP ignoring the integer valued constant. So first you have to simply solve whatever the question is given, you have to simply solve with the help of graphical method. Therefore in bracket I have written graphically you have to solve the problem. Next is step 2 is test the integrability of the optimum solution obtained in step 1. Means you have to check whether the solution is optimal or not. First one is the optimum solution is integrable valued, then the required solution is obtained. Suppose if you are solving it graphically and the solution is integral valued, then required solution is obtained, you don't have to do anything. But if suppose the optimum solution is not obtained means the value, whatever the value you have got of x1 and x2, then it is fractional valued, then the solution is not optimal and not integer valued. In that case you have to proceed to the step 3. What is the step 3? If the optimal valued xt asterisk of the variable xt is fractional, then you have to split that problem into two subproblems. First is subproblem 1 and subproblem 2. Given problem with one more constraint xt less than equal to this, and one more subproblem where xt will be xt asterisk plus 1. Okay, what is the meaning of this? Suppose here I am explaining. Suppose you have got x2 equal to 9.6. okay, this is not integer valued, it is fractional valued. So in this case you have to find first greatest integer factor of x2. So you have to find this greatest integer means 9.6 is the number, then the greatest integer till 9.6, मतलब 9.6 तक में सबसे बड़ा इंटीजर मेरा क्या है 9. तो ये एक होगा इसका आंसर. ये ऐसे अगर हम बिग ब्रैकेट के अंदर 9.6 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 9. और उसके बाद एक सब प्रॉब्लम में हमारा क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन किए थे कि एक में होगा xt लेस देन इक्वल टू xt का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और नेक्स्ट है xt ग्रेटर देन इक्वल टू xt एस्ट्रिक का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1. मतलब कि अगर हमारा ये x2 मेरा 9.6 हुआ तो हम लोग एक लेंगे x2 लेस देन इक्वल टू 9 और एक हम लोग लेंगे x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10. क्यों ऐसा लिया? क्योंकि अगर आपका x2 का वैल्यू 9.6 है और हमको जो चाहिए वो इंटीजर चाहिए, मतलब 8, 9, 10 इस टाइप का वैल्यू चाहिए, तो या तो मेरा जो वैल्यू x2 का वैल्यू हम चाहते हैं कि 9 से छोटा ही हो, इक्वल हो 9 के इक्वल हो या 9 से छोटा हो लेकिन इंटीजर हो, या तो मेरा वैल्यू क्या हो x2 से मतलब 10 से बड़ा हो, मतलब 9 से छोटा कोई भी इंटीजर 1 से लेकर 9 तक कोई भी चलेगा, या फिर 10 से बड़ा 10 के बराबर भी चलेगा और उससे ऊपर. तो हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए. तो इंटीजर वैल्यू या तो क्योंकि मेरा वैल्यू 9.6 है तो उससे छोटा इंटीजर वैल्यू चलेगा, या 9.6 से बड़ा इंटीजर वैल्यू चलेगा. तो इसीलिए हम लोग उस तरह से दो सब प्रॉब्लम्स में कोई भी क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे. उसके बाद हमारा क्या होगा कि सॉल्व द सब प्रॉब्लम 1 and 2 ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3. नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेप 3 में जो दो सब प्रॉब्लम आया है उस सब प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे. तो इफ़ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑफ द टू सब प्रॉब्लम्स आर इंटीजर वैल्यूड, देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दैट विच गिव लार्जर वैल्यू ऑफ z, दैट इज द सॉल्यूशन. मान लो कि अब है ना सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व कर रहे हो, तो सब प्रॉब्लम 1 से भी कुछ इंटीजर वैल्यू ही आंसर आया और सब प्रॉब्लम 2 से भी इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन आया. तो आप कौन सा सब प्रॉब्लम को करेक्ट मानोगे, किससे आप सोचोगे कि हाँ हम वही मेरा करेक्ट है, दोनों से तो मेरा इंटीजर ही आ रहा है. और अल्टीमेट एम हमारा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में है कि इंटीजर वैल्यू आंसर लाना.
तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लार्जर वैल्यू देगा, लार्जर वैल्यू ऑफ z देगा, उसी को हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन मानेंगे. If the optimal solution of one subproblem is integer valued and the other subproblem has no feasible optimal solution, then the required solution is that the subproblem have been इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन. अब मान लो कि मेरा दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया, एक सब प्रॉब्लम 1, एक सब प्रॉब्लम 2. एक सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करने पे हमें इंटीजर वैल्यू मिल गया और दूसरे सब प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इंटीजर वैल्यू नहीं मिला, मतलब नो फिजिबल मिला. तो वैसे केस में जिससे इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन आएगा उसी को हम लोग सॉल्यूशन मानेंगे. थर्ड नंबर है, इफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम इज इंटीजर वैल्यू while that of the other सब प्रॉब्लम इज फ्रैक्शनल वैल्यूड. मान लो कि एक में मेरा इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन आ गया और दूसरे में फ्रैक्शनल वैल्यूड सॉल्यूशन आ गया. देन रिकॉर्ड द इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन एंड रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर द फ्रैक्शनल वैल्यूड सॉल्वर. मान लो कि अब मेरा क्या हुआ कि पहला एक मेरा प्रॉब्लम था. इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम मेरा स्प्लिट हो गया दो प्रॉब्लम में. एक हो गया सब प्रॉब्लम 1 और दूसरा हो गया सब प्रॉब्लम 2. अब मान लो इसको जब हम सॉल्व किए तो मेरा इंटीजर वैल्यूड आ गया, इसको सॉल्व किए तो मेरा इंटीजर वैल्यू आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसको सॉल्व किए तो मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया. तो अब फिर से ये जो सब प्रॉब्लम है वो दो सब प्रॉब्लम में स्प्लिट हो जाएगा, सब प्रॉब्लम 3 और सब प्रॉब्लम 4. अब इससे जो सॉल्यूशन आया, मान लो कि ये दोनों से मेरा इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन आ गया, ये दोनों से इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन आ गया, तो हम ये और ये तीनों को कंपेयर करके चेक करेंगे कि मेरा आंसर किस में पॉजिटिव आ रहा है. समझ में आ रहा है कि ये वाला और ये वाला तीनों में. अगर मान लो कि यहाँ भी मेरा इंटीजर नहीं आया, यहाँ भी फ्रैक्शनल आ गया, तो हम लोग फिर से और दो बनाना देंगे. ये सब प्रॉब्लम 3 था, सब प्रॉब्लम 4 था. अब हम लोग 4 से ये 5 सब प्रॉब्लम 5 और ये सब प्रॉब्लम 6 हो जाएगा. और अगर मान लो कि है ना, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये और ये 5 6 सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 4 5 6 में कौन हमें लार्जर वैल्यू दे रहा है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सही आंसर को टिक करेंगे. तो यही हमारा एल्गोरिदम है. ये एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस भी देते हैं प्लस एल्गोरिदम भी देते हैं, ताकि वैसे स्टूडेंट जिनका थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट कमज़ोर है, जो कि जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो वो तो एग्ज़ाम में अगर बनाने बैठेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. तो इसीलिए ऐसे केस में कुछ है ना, अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपका अगर न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको एल्गोरिदम लिख के भी आंसर मिल जाएगा. तो जो लोगों को थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में ये सब में बनाने में थोड़ा टफ लगता है, तो वो लोग एल्गोरिदम को ज़रूर देख लेना. ये सेफ साइड है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे. ये क्वेश्चन में क्या है, x1 + x2 मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और 3x1 + 2x2 <= 12 एंड x2 <= 2 मेरा क्या है, कंस्ट्रेंट्स है, मीन्स सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स है. अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक. ये जो अभी हम क्वेश्चन लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हमको लग रहा है सब प्रॉब्लम 2 ही तक बनेगा, एक तो मेन प्रॉब्लम रहेगा और वही मेन प्रॉब्लम 2 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि 5 6 7 8 सब प्रॉब्लम्स तक भी जाते हैं. तो अभी वाले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके देखते हैं. तो ये ग्राफ में इसको सॉल्व करते हैं. पहला मेरा इक्वेशन क्या है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या है, 3x1 + 2x2 = 12 ले लेते हैं, क्योंकि ये सिंप्लेक्स नहीं है जो आपको <= को है ना इक्वालिटी में बदलने के लिए स्लैक या सरप्लस वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा. ये मेरा सिंपल ग्राफिकल मेथड से बना रहे, तो अगर इन इक्वालिटीज़ को हम सिंपली इक्वालिटी में बदल सकते हैं. तो अगर हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से सोचिए, अगर हम लोग x1 के जगह पे और x1 के जगह पे 0 रखेंगे तो x2 हमारा 6 आएगा, और x2 के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो x1 हमारा 4 आएगा. ठीक है, तो हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे. और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, x2 = 2. तो ये तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा. तो इसको हम लोग बनाते हैं. अगर मेरा ये 0 है तो x2 6 है, तो पहले यहाँ पे पॉइंट्स दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मेरा है 1 2 3 4 5 6. तो देखो, अगर मेरा x1 = 0 तो x2 मेरा 6 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट को दे देते हैं. और अगर मेरा x1
अगर 4 है तो ये 0 है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे मैच कर दें तो हमारा बन जाएगा ये लाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और क्या है, x2 इक्वल टू 2। तो x2 2 मतलब कि ये वाला, तो हम लोग x2 2 को मैच कर देते हैं। ठीक है, x2 2 को हम लोग मैच कर दिए। इस इक्वेशन का नाम है x2 इक्वल टू 2 और इस इक्वेशन का नाम है हमारा, क्या नाम है, x3 x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, to know the coordinates of the point at which these two lines are intersecting, we have to solve these two equation. Okay, you have to solve. see, point of intersection जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके वैल्यूज़ को, दो इक्वेशन है मेरे पास, और बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कौन सा लाइन, एक है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12 एंड दूसरा इक्वेशन है x2 इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वेशंस के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानना है तो सिंपली x2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो इफ़ x2 मेरा 2 रहेगा, x2 अगर 2 रहेगा तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3x1, x1 निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 3x1 प्लस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 3x1 बराबर 8 हो जाएगा, तो x1 मेरा 8/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट का 8/3, 2। ठीक है, इस पॉइंट का नाम 8/3, 2 है। अब देखिए हम लोग इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। चूँकि मेरा ये जो ग्राफ है कैसा है, लेस देन इक्वल टू का ग्राफ है ना, तो लेस देन इक्वल टू का जब भी ग्राफ रहता है तो जब हम लोग को कवर्ड एरिया मतलब कॉमन एरिया निकालना होता है, लेस देन इक्वल टू है तो मतलब यहाँ पे हम लोग ये ऐसा निकालेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और जब है ना लेस देन इक्वल टू होता है तो टू द ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ। तो लेस देन इक्वल टू का ग्राफ है तो मेरा ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो लाइन है वो ओरिजिन की तरफ मतलब इस तरफ होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम लोग इस तरफ शेड करते हैं, इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ करेंगे, और फिर जब x2 है वो भी मेरा कैसा है, लेस देन इक्वल टू का, तो वो भी ओरिजिन की तरफ ही जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर इधर। लेकिन अब हमको कॉमन एरिया निकालना है, तो कॉमन एरिया मेरा क्या है, कॉमन एरिया यही है। ठीक है, ये हमारा कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया जो जो पॉइंट्स को सराउंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 0 2 है, फिर 0 0 है, और फिर नेक्स्ट क्या है, ये 4 0 है। ठीक है, 4 पॉइंट्स को सराउंड कर रहा है। इस 4 पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पे चेक करेंगे, एट 0 2 पे z का वैल्यू क्या होगा, 0 + 2 2 होगा। एट 4 0 पे z का वैल्यू 4 होगा। एट 8/3, 2 पे z का वैल्यू 8/3 + 2 होगा। मतलब कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 6, और ये हो गया 14/3। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4.6 समथिंग आ रहा है। तो 4.6 आ रहा है, मतलब यही पॉइंट पे मेरा क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। किस पॉइंट पे, जब हम लोग x1 8/3 ले रहे हैं एंड x2 अगर हम लोग 2 ले रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन दिस इज़ नॉट अ इंटीजर वैल्यूड आंसर। ठीक है, ये हमारा इंटीजर वैल्यूड नहीं है। ये तो x2 तो चलो ठीक है इंटीजर वैल्यूड है, लेकिन मेरा x3 जो है वो इंटीजर वैल्यूड नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसे केस में, चूँकि हम लोग IPP बना रहे हैं, IPP में हमारा कंसर्न होता है कि हमें इंटीजर वैल्यू ही लाना है। हमें इंटीजर वैल्यू लाना, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम सिंप्लेक्स बनाते, सिंपल ग्राफिकल बनाते तो हमारा फ्रैक्शनल भी चलता। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्विंग द बाय ग्राफिकल मेथड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x1 मेरा क्या है, 8/3, जिसको हम लोग 4.6 भी लिख सकते हैं, और
x2 क्या है 2 और z का वैल्यू क्या आया, नहीं 8/3 को हम लोग 2.6 लिखेंगे ना, और z का वैल्यू मेरा 14/3 आया, दैट इज़ 4.6 आया। तो आप ही सोचो, अगर आप ये जो LPP है वो आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक्स का कर रहे हैं कि बाइक का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए आप बनाए हो ये LPP, तो क्या आप x1 जो है 8/3 है, क्या 2.6 बाइक्स बना सकते हैं कभी हम लोग? नेवर। हमारा जो बाइक्स नंबर ऑफ बाइक्स होगा वो हमेशा इंटीजर में होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग IPP का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा x1 2.6 है और x2 2 है और z का वैल्यू 14.3 है। ऑप्टिमल तो सॉल्यूशन है, लेकिन हमारा ऐसा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, लेकिन हम लोगों का सॉल्यूशन ऑप्टिमल होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शनल होने की वजह से हमें इसे सॉल्व करना होगा फिर से। तो हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, सिंस द सॉल्यूशन is not integral valued, first we choose x1, क्योंकि x1 ही है जो कि मेरा इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम लोग x1 को ही चूज़ करेंगे और आंसर अपना लाने का कोशिश करेंगे, जो कि कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x1 का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन निकालेंगे 2.6, तो ये मेरा वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसी को x1 एस्ट्रिक देते हैं, ठीक है, इसी का नाम देते हैं, और इसको हम लोग एक और निकालेंगे x1 एस्ट्रिक +1 निकालेंगे, जो कि मेरा 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो हम लोग सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करते हैं। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि है ना, हम लोग पीछे पढ़े क्या थे, कि जब भी ऐसा केस हो तो इफ़ द ऑप्टिमल वैल्यू xt ऑफ द वेरिएबल xt इज़ अ फ्रैक्शनल, देन फॉर्म 2 सब प्रॉब्लम, एक सब प्रॉब्लम 1 बनाओ, एक सब प्रॉब्लम 2 बनाओ, गिवन प्रॉब्लम विथ 1 मोर कंस्टेंट, जो भी प्रॉब्लम दिया हो वही प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन उसमें एक कंस्टेंट और ऐड हो जाएगा, जहाँ पे xt एस्ट्रिक का लेस देन इक्वल टू, और एक और यहाँ पे सब प्रॉब्लम 2 में भी एक और कंस्टेंट ऐड हो जाएगा, जहाँ पे xt एस्ट्रिक +1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा रहेगा। तो हम लोग वही करते हैं, x1 ही है, सब प्रॉब्लम सब बनाते हैं हम लोग। तो सब प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, नाउ वी फॉर्म, स्टेप 3 होगा, नाउ वी फॉर्म द फॉलोइंग 2 सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो सब प्रॉब्लम 1 में क्या होगा, सब प्रॉब्लम 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सब प्रॉब्लम 2। तो सब प्रॉब्लम 1 में हमारा z मैक्स z इक्वल टू x1 + x2 ही होगा, और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट क्या होगा, 3x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, x2 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी रहेगा, लेकिन एक कंस्टेंट और ऐड हो जाएगा x1, जहाँ पे हमें लेना है लेस देन वाले में लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी मेरा सेम रहेगा, मैक्स z इक्वल टू x1 + x2, फिर होगा सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट 3x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, x2 लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे एक और हो जाएगा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड कैसे हम लोग किए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हम कैसे लाएं, ये आपको हम पहले ही बता दिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाओ, और ये जो है वो मेरा नया कंस्टेंट है, जो कि पुराने वाले ही क्वेश्चन में क्या हो गया, ये 2 ऐड हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये 2 प्रॉब्लम का भी ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ की मदद से हम लोग फिर से ऑप्टिमम सॉल्यूशन लाने का कोशिश करेंगे। तो देखो ये 2 ग्राफ तो मेरा जैसा है वैसे ही रहेगा ऑलरेडी, बस एक और नया ग्राफ ये ऐड हो जाएगा। तो हम लोग चलो करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर है नेक्स्ट एक और बनाना है, तो उसके लिए भी अभी हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो पहला ग्राफ तो हमारा वही बनेगा जो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। दूसरा ग्राफ भी यहाँ से ही जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। एक ऐसा ग्राफ, एक हमारा ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, और दूसरा क्या है, x1 लेस देन इक्वल टू 2। तो x1 2 मेरा ये है ना, तो ये एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका नाम है x1 इक्वल टू 2, इसका नाम है x2 इक्वल टू 2, और इस ग्राफ का नाम है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हम लोगों को सब प्रॉब्लम 2 के लिए ग्राफ बनाना है। ये दो तो सेम ही है, बस एक और हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जाएगा, तो वो हम बना लेते हैं। ये ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 पे जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट है मेरा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब पहले तो हमें x1 3 पे ही चेक करना है ना। तो ये मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका नाम है x1 इक्वल टू 3, इसका नाम है x2 इक्वल टू 2, इसका नाम क्या है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, वी हैव 2 graphs which we have और with the all sub problems have 2। अब हम लोग कॉमन रीजन फाइंड करेंगे। कॉमन रीजन देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमारा क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारा ये लेस देन इक्वल टू है, मतलब कि ये तो मेरा इसी साइड होगा, जो शेडेड रीजन है वो इसी तरफ होगा, और ये मेरा लेस देन इक्वल टू है 2, तो ये भी मेरा शेडेड रीजन इसी तरफ होगा। ठीक है, फिर मेरा एक और है x1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन है, तो मेरा शेडेड रीजन इसी तरफ होगा। मतलब फाइनली जो मेरा शेडेड रीजन होगा वो ये एरिया होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट हमें पता है, ये तो ग्राफ से ही पता चल रहा है कि 2,2 है, हमें इंटरसेक्शन निकालने का ज़रूरत नहीं है। ये वाला मेरा 0 2 है, ये वाला मेरा 2 0 है, और यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, हम आप लोग चाहो तो नाम भी दे सकते हो, जैसे इसको हम ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे रहे हैं, इसको सी नाम दे रहे हैं, इसको डी नाम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ का शेडेड पोर्शन निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं। ये तो मेरा इसी तरफ होगा, ये तो मेरा इसी तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का ग्राफ है, ये भी लेस देन का है, तो वो भी मेरा इसी तरफ होगा। ये x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वो ओरिजिन की तरफ ना होके इस तरफ बनेगा, इस तरफ ऐसा। तो कॉमन रीजन क्या होगा, अगर हम यहाँ ये वाला है, हमको ऐसा लेना है जो कि, क्योंकि ये लाइन जो है ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसके इधर भी होना चाहिए, इसके भी नीचे होना चाहिए, x3 के बस इधर, तो ये मेरा कॉमन रीजन बनेगा। एक बार आप लोग इसको भी ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आप लोग समझ जाओगे कि हाउ दिस पॉइंट इज कॉमन रीजन। तो ये पॉइंट हमें निकालना होगा कि ये पॉइंट क्या होगा, और बाकी तो पॉइंट हमें ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये 4 0 है, ये 3 0 है, और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन सा 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, x1 3। हाँ, तो वो इंटरसेक्शन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x1 मेरा 3 के बराबर है। देखो कैसे हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। x1 मेरा 3 के बराबर है, और मेरा एक और इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12। तो ये x1 का वैल्यू वी विल सब्सटीट्यूट हेयर, तो 9 प्लस 2x2 बराबर 12, तो 2x2 इज इक्वल टू 12, तो -9, तो x2 मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, डेट इज़ 1.5। अगर आप ग्राफ को अच्छे से देखो तो ये पूरा मेरा बीच में आ रहा है, ये 1.5 भी है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ग्राफिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, एक्यूरेट के लिए हम लोग को कैलकुलेशन कर लेना चाहिए।
तो अब हम लोग स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि फॉर सब प्रॉब्लम 1 के लिए हम लोग चेक करेंगे फॉर सब प्रॉब्लम 1 के लिए चेक करेंगे। तो z हमको कौन सा पॉइंट पे, a पॉइंट पे, एट a z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 0 + 2 2 एट b पे z का वैल्यू देखो, b किसको माने थे हम लोग, अच्छा b हम लोग माने थे, ये गलत हो गया ना, इधर b इसको माने थे एट b, एट a तो हम लोग 0 माने थे, तो z तो मेरा 0 + 0 0 ही होगा। अगर हम लोग एट c चेक करें तो c पे हमारा 2 + 2 z इज इक्वल टू 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एट d हम लोग 2 माने तो z इज इक्वल टू 2 + 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू वी आर गेटिंग एट पॉइंट c इन सब ग्राफ सब प्रॉब्लम 1। अब हम लोग फॉर सब प्रॉब्लम 2 के लिए करते हैं। सब प्रॉब्लम 2 में भी देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट का नाम क्या होगा हमारा, ये पॉइंट का जो नाम होगा वो हम लोग कह देंगे 3,1.5, ठीक है, 3,1.5। तो नाउ वी विल फॉर्म अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर सब प्रॉब्लम 2। सब प्रॉब्लम 2 के लिए एट ये पॉइंट को नाम a दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को नाम b दे रहे हैं और इस पॉइंट को नाम c दे देते हैं, c, ठीक है। तो अब हम लोग इस ग्राफ के हिसाब से बनाएंगे। एट a मेरा क्या आ रहा है, z इक्वल टू 3 + 1.5 3.5 आ रहा है। एट b मेरा क्या आ रहा है, देखो b पे z मेरा क्या आ रहा है, 3 + 0 आ रहा है, मतलब कि 3। एट c पे मेरा क्या आ रहा है, z 4 + 0 मतलब कि 4। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, चूँकि ये पॉइंट पे मेरा पे मैक्सिमम आ गया और ये भी, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो अगर इसको सॉल्व करते वक्त अगर हम ये चेक करें तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, आप एक बार चेक करो, देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 10 सब प्रॉब्लम 1 and 2 both gives सेम मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारा 2 आंसर पॉसिबल है। पहला देखो, फ्रॉम सब प्रॉब्लम 1 से, फ्रॉम सब प्रॉब्लम 1 से हमको क्या मिला है, देखो हमें मिला है x1 इक्वल टू मिला है 2 और x2 मिला है 2, देयरफॉर z का वैल्यू मिला 4। और अगर हम सब प्रॉब्लम 2 से देखें, अगर हम सब प्रॉब्लम 2 से अगर हम देखें तो x1 मिला है 4 और x2 मिला है 0, तो z का वैल्यू फिर से 4 हो गया। तो दीज 2 आर द आंसर्स, ओके। तो यही 2 हमारे आंसर्स हैं। So students, this is the branch and bound technique. In this technique we have only drawn this is our major graph, this is our main graph, and this graph has splitted into 2 parts, this one and sub problem 1 and sub problem 2. But don't think that this is enough for reading branch and bound technique. ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक में जनरली अगर कोई भी आप क्वेश्चन को कॉमन क्वेश्चन उठाओगे तो 5 ग्राफ तो एटलीस्ट बनता ही है। लेकिन हम एक सिंपल एग्जांपल लिए ताकि आप लोग वीडियो में ही समझ सको कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हम लोगों को सॉल्व क्या करना है। इसीलिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया है। होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन भी आज देंगे आप लोगों के पीडीएफ में, साथ में ही पीडीएफ में एक क्वेश्चन भी डालेंगे और उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके चेक करना है कि कितने सब प्रॉब्लम्स बनेंगे, और उसका आंसर भी मैं लिख दूंगी ताकि आप लोग है ना उसे करेक्ट है या नहीं ये चेक कर सको।
So if any doubt is there, kindly ask in discussion forum, and please go through the algorithm first, because algorithm is very important. If you will not understand the algorithm, then you will not understand the whole concept behind this. So in algorithm, the main important thing is greatest integer factor, that how I have written 2.62. It's all about the greatest integer factor.